सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज भावेश शर्मा। तो आज हम फिर से आ गए हैं अपने नई वीडियो में। लेक्चर 2 है, चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और जो आज का टॉपिक जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द किंगडम मोनेरा। तो इस किंगडम मोनेरा में हम ये जानेंगे कि आखिर ये किंगडम मोनेरा है क्या। हम ये भी जानेंगे कि जो किंगडम मोनेरा है ये बाकी किंगडम से इतना डिफरेंट क्यों है और किस तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे इस किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस टॉपिक किंगडम मोनेरा में भी मिलेगा। और इस टॉपिक के अंदर बेटा हम लोग हैंस क्रिस्टियन ग्राम के बारे में भी बात करेंगे। हैंस क्रिस्टियन ग्राम कौन है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो आइए पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है मोनेरा। What is Monera? Okay, the first thing when we hear about this topic, the first question which comes to our mind that what is Monera? Monerans, इसको हम लोग मोनेरंस के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा? मोनेरंस। ठीक है बेटा। अब ये मोनेरंस क्या होते हैं भाई? when we talk about the kingdom Monera, it means that we are talking about those organisms which are single cell, but my dear friend, these single celled organism, when we talk about this organism on the basis of their cellular level, it means that we are talking about their presence of nuclear membrane or absence of nuclear membrane. Okay, let's talk about it. And on the basis of presence and absence of nuclear membrane, this Monera has been grouped into the prokaryote. Into the prokaryote. As you all have studied in class 9 that the cells which do not contain a well-defined nuclear membrane and a well-defined cell organelle, such type of organisms are placed under the category of protista. And these monerans are single-celled and also these organisms are protista. Getting a point or not? Okay. So my dear students, in this kingdom Monera, which kinds of living organisms are placed? Yes, bacteria. Who are placed? Bacteria are placed in this kingdom Monera. So my dear friend, let me tell you something more. These organisms, this kingdom Monera, contain cell wall. What they contain? They contain cell wall. As you all have studied that this cell wall is actually present in the plant, and I am saying that this cell wall is also present in this bacteria. But the difference behind this is that the composition of cell wall in both the kingdom Plantae and kingdom Monera is quite different. When we talk about the cell wall, the presence of cell wall in bacteria, we should also know the composition. The cell wall of bacteria is actually made up of peptidoglycan. Okay my dear friend, getting a point or not? ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। Okay, let's talk about their mode of nutrition. What? We will talk about their mode of nutrition. When we talk about their mode of nutrition of bacteria, it means that they are autotrophic, they are also heterotrophic, and also they are parasitic. So these are the three
modes of nutrition of an bacteria. Get a point or not? Yes. My dear students, let's talk about their mode of reproduction. When we talk about their mode of reproduction, it means that we are talking about they perform the two mode of reproduction, which is the asexual by the binary, and they also perform the process of sexual reproduction. Okay? So these are the some characteristics of Monera. Let's copy it down. Okay. Hope you all have copied it down. Let's talk about this bacteria. My students, this bacteria is actually of two types. First, it is the of Archaebacteria. Archaebacteria. And second is it Eubacteria. My dear friends, this Archaebacteria is also known as the primitive bacteria. These bacteria are very special forms of bacteria. How? Let's talk it. My dear friends, this Archaebacteria can survive in extreme climatic conditions. This Archaebacteria can survive in extreme climatic condition. All about. When we talk about the extreme climatic condition, it means that we are talking about the heat. It means that we are talking about the acidic, and also we are talking about the salt. So these are the extreme climatic place where these certain form of organism can survive. So on the basis of this, there are three types of Archaebacteria. First is the methanogens. Second is the thermoacidophils, and third is the holophils. Third is the holophils. So these are the three kinds of Archaeobacteria. Okay? And these different kinds of bacteria can survive in extreme climatic conditions. Okay? When we talk about the Eubacteria, it means that we are talking about the true bacteria. Okay? Example Cyanobacteria. We can take the example of Cyanobacteria, जिसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं. बात समझ में आ रही है? यस. तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई. ठीक है, कॉपी डाउन करिए. ओके, होप सो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा. आइए बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में. ध्यान दीजिएगा, इनके अंदर दोनों ही तरीके के रिप्रोडक्शन परफॉर्म होते हैं. पहला होता है एसेक्सुअल भी इनके अंदर होता है, दूसरा इनके अंदर सेक्सुअल भी परफॉर्म होता है. इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस बाइनरी फिजन की हेल्प से होता है,
और जब हम लोग सेक्सुअल की बात करते हैं तो इट इज क्वाइट डिफरेंट. So in sexual reproduction there are three methods which is being employed. The first is the transformation. Second is the transduction and second is the conjugation. So these are the three different types of reproduction. Okay? Getting my point or not? Okay. Copy it down. Dear friends, hope you all have copied down. आइए जरा सा आर्ची बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं. आर्ची बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से बहुत ही अलग होता है. कैसे? आइए समझते हैं. ये जो आर्ची बैक्टीरिया है, हमने कहा इट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन पे ये सर्वाइव कर सकता है. बात समझ में आ रही है? कैसे? देखिए, ये है बैक्टीरियल सेल. ठीक, पढ़ाया गया था आपको 9th में. इसके ऊपर है ये सेल वॉल. यही बताया गया था आपको 9th क्लास में. क्या है ये? सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, होप समझ में आ रहा हो. ये क्या है? सर्कुलर डीएनए नोन एज न्यूक्लियोइड. ये क्या है? मीजोजोम, जिसकी वजह से क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है. आपको पता होना चाहिए जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. बात समझ में आ रही है? एक्सेप्ट राइबोसोम, द प्रोटीन फैक्ट्री. बात समझ में आ रही है? यस. बट ये तो वहां बन गया बैक्टीरियल सेल. लेकिन अगर ये बैक्टीरिया, अगर आपका आर्चियो बैक्टीरिया है, तो इसके ऊपर एक सेल वॉल के ऊपर एक एक्सटर्नल लेयर प्रेजेंट होती है. क्या होती है? सेल वॉल के ऊपर एक एक्सटर्नल लेयर प्रेजेंट होती है. उसका नाम क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स. क्या नाम होता है बाबू? उसका नाम होता है ग्लाइको. ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स. इस ग्लाइकोकैलिक्स की ही वजह से ये पर्टिकुलर आर्ची बैक्टीरिया एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन पे क्या कर सकता है बाबू? सर्वाइव कर सकता है. बात समझ में आ रही है? यस. एक चीज और जो मैंने बनाया नहीं, एक ऐसा होता है, इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है बाबू प्लाज्मिड. क्या नाम होते हैं? प्लाज्मिड. अब प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड क्या है बताऊंगा इसके पीछे, क्योंकि हमको इसको बताने के लिए पहले हैंस क्रिस्टियन ग्राम के बारे में बात करना पड़ेगा, तभी ये आपको समझ में आएगा. होप सो समझ में आ रहा है? कॉपी डाउन. होप सो आप लोगों ने कॉपी कर लिया. आइए बात करते हैं नेक्स्ट यू बैक्टीरिया का बात कर लेते हैं. साइनो बैक्टीरिया और
ब्लू, ग्रीन, होप सो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। आइए बात करते हैं यू बैक्टीरिया के। में एक एग्जांपल लेते हैं, इसका क्या नाम है, साइनो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। ठीक, बात समझ में आ रही है? दिस साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑफ फिलामेंटस शेप। किस शेप का होता है बेटा ये? फिलामेंटस। फिलामेंटस शेप का होता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? नोन एज नॉस्टॉक। नॉस्टॉक, देखो एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर बना होगा। यस और नो? यस। ध्यान से सुनिएगा, देखो ऐसे स्ट्रक्चर बना होगा। बनाया नहीं बनाया? यस, बनाया ना। देखो ठीक है, ये क्या है और ये क्या है? सेम ही चीज है। इसका नाम है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट, ध्यान समझिएगा बेटा। ये जो आपको साइनोबैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। मतलब इसके पास ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, इसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाता है। ये इस बैक्टीरिया की बेटा बात करें तो ये लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी प्रोसेस परफॉर्म करता है। क्या करता है? लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है। फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से को कंज्यूम करता है और लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर फिक्स कर देता है। तो बात एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, चलो मान तो लिया फिक्स करता है, ये समझ में आ गया, आप लोग को याद भी हो गया। लेकिन क्वेश्चन कभी एग्जाम पूछ लेता है, आखिर इसके पास बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसकी हेल्प से, या कौन सा पार्ट है जिसकी हेल्प से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है? सो द आंसर इज द हेट्रोसिस्ट। सो द आंसर इज द हेट्रोसिस्ट की हेल्प से N2 फिक्सेशन क्या होता है? N2 फिक्सेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है एक पर्टिकुलर प्लांट के अंदर। देखिए इसका स्ट्रक्चर बना होगा आपके एनसीईआरटी में, और देखो वहां पे हेट्रोसिस्ट लिखा भी होगा। बात समझ में आ रही है? ओके, कॉपी इट डाउन एवरीवन, देन वी शुड स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, होप सो यू हैव कॉपी इट डाउन। आइए हम लोग बात करते हैं साइंटिस्ट के बारे में। उसका नाम था हैंस क्रिस्टिन ग्राम। इन्होंने क्या बताया? दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। इन्होंने बैक्टीरिया को बहुत अलग तरीके से क्लासिफाई किया। क्या कहा कि एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ध्यान सुनिएगा बेटा। ये जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनके पास जो सेल वॉल होता है मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसे आपको पता ही है। लेकिन इस पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर, ध्यान सुनिएगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है। उस एसिड का नाम होता है टैकोरिक एसिड। क्या नाम होता है? टैकोरिक एसिड होता है, जिसकी हेल्प से यह बैक्टीरिया क्या करता है? स्टेन करता है। क्या करता है?
स्टिन यानी कि कलर अडॉप्ट करता है, यानी कि कलर खींचता है। और इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का एक प्रॉपर कलर होता है, उसका नाम होता है पर्पल। कभी भी आपको कोई ग्लास स्लाइड मिले और उसमें आपको बैक्टीरिया ऑब्जर्व करने को बोला जाए और उस स्लाइड पे अगर एक पर्पल कलर का अगर आपको दिख जाए, समझ जाइएगा कि वो कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और एक बार ध्यान सुनिएगा, इतनी बात समझ में आ गई? यस, कॉपी डाउन। ओके, आइए जरा सब लोग बात कर लेते हैं अब एक बार ग्राम निगेटिव के बारे में। पहले ग्राम पॉजिटिव के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव के पास, जैसे मैंने बताया था, जब मैंने स्ट्रक्चर बना रहा था तो उसमें मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, बनाया था। इसका क्या नाम होता है? नोन एज प्लाज्मिड। क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मिड कहा जाता है। व्हाट इज प्लाज्मिड? इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, इट इज नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। दिस प्लाज्मिड इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बात समझ में आ रही है? यस। बट बेटा, जब हम लोग ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बात करते थे, बात ध्यान सुनिएगा। जो हमारे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके पास सेल वॉल तो होता है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है, लेकिन उनके पास टैकोरिक एसिड नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, उनके पास टैकोरिक एसिड नहीं होता है, जिसकी हेल्प से वो स्टेन नहीं कर पाते हैं। और अगर उनको आपको पहचानना हो, अगर आपको ग्लास स्लाइड मिल जाए, पहचानना हो कि कौन सा इसमें से ग्राम निगेटिव है, तो अक्सर बेटा ये जो ग्राम निगेटिव होते हैं इनका कलर क्या होता है? रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है बाबू? रेड कलर का होता है। बात समझ में आ गई? अब हम लोग बात करते हैं, क्या इन ग्राम निगेटिव के पास प्लाज्मिड होता है? नो, द आंसर इज नो। दिस ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन plasmid also. So on the basis of these criteria, this bacteria has been divided into two types, that is the gram positive bacteria and also it is also known as the gram negative bacteria. बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कॉपी करिए, मिलते हैं आपसे फिर से।